Good morning, good afternoon, and good evening, प्यारे बच्चों. In our previous discussion, we have introduced this particular quantity, that is moment of inertia. Okay? And I told you what's the physical significance, okay, of this particular quantity. Fine. So if, I say that this particular thing is rotational inertia, then that is also, very much right. Okay? Now, moment of inertia, as we have defined, moment of inertia basically is inertia, that is inertness of the body in case of rotation. Okay, a body can't change its state by itself when rotating. Okay, at rest will remain at rest. If it is in motion, it will remain in motion. If we want the body to change its state, we need to apply the enforcement. If we are talking of linear motion, then we need to apply force. And if we are talking about the rotational motion, then we need to apply rotational force, that is torque. Okay? ठीक है. तो moment of inertia, what basically is, defined by moment of inertia. Okay? शायद अब आपको पता चल गया हो. ठीक है. अब हमने इसको moment of inertia क्यों कहा? हम रोटेशनल इनर्शिया भी तो कह सकते थे. ओके, सी दैट. अभी वो भी रीडू कर देते हैं. लेट्स हैव अ रिकैप. रोटेशनल इनर्शिया, दैट इज इक्वल टू मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन होल स्क्वायर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ मास मीन इनर्शिया. Mass mean inertia, that is inertness. Perpendicular distance, that is perpendicular length of perpendicular arm of rotation whole square. Now mass of the body is defining inertia of the body. Okay, perpendicular distance from the axis of rotation, that is length of perpendicular arm of rotation whole square. अब हमने आपको बताया था ये टर्मोलॉजी कि whenever any quantity is multiplied with perpendicular arm of rotation, तो हम क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का मोमेंट बना देते हैं. ठीक है. इट मींस जो रोटेशनल इनर्शिया है, इनर्शिया को हमने क्या किया, परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई कर दिया ना. तो दिस पर्टिकुलर टर्म जो ये बन रही है प्रोडक्ट में, दिस शुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इस कारण से हमने जो रोटेशनल इनर्शिया है उसको कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नाउ इन केस ऑफ अ रिजिड बॉडी, हाउ टू राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट अस सी. नाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the body, we are considering a rigid body basically. Okay, and that body is made up of particles having masses m1, m2, m3 and so on. These all masses are situated from axis of rotation at distances r1, r2, r3 and so on. All these masses are situated at perpendicular distances r1, r2, r3 up till rn. Okay, or let this body is going around z axis. Okay, कुछ ऐसे. This is z axis, this is your x axis and this is your y axis. Okay, x axis, y axis and z axis. Okay, and this is the rigid body. This is the rigid body. Mass m1 is situated at perpendicular distance r1. Mass m2 is situated at perpendicular distance r2. It's okay, and so on. Nth particle mass, nth mass is situated at perpendicular distance rn. It's okay. Now this is your z axis. Fine. X and y axis. Now moment of inertia of this rigid body, okay, we will be able to write as, देखो कैसे लिखना है. फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, mass of the particle
और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म के लिए सेम, थर्ड टर्म के लिए, फोर्थ टर्म के लिए, एंड सिमिलरली फॉर ऑल द पार्टिकल्स इंडिविजुअली वी विल बी कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके बाद सारे इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज जो हैं फॉर ईच पार्टिकल उन सबका सम कर देंगे. दैट विल बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी. नाउ moment of inertia is written by I. The very first term is moment of inertia for the first particle, है ना, particle having mass m1. कितना होगा? Moment of inertia will be m1. Perpendicular distance is r1 whole square. m1 r1 whole square plus moment of inertia of second mass, second particle, okay, having mass m2. Perpendicular distance r2 whole square plus m3 r3 whole square plus up till nth mass, that is mn rn square. ओके, इसको हम समेशन टर्म के अंदर लिख सकते हैं. ओके, लेट्स राइट इट हाउ. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू समेशन इज कन्वेइंग कि सम ऑफ दीज ऑल टर्म्स जो कि हम यहां जनरेट करेंगे, एम आई आर आई स्क्वेयर. ओके, आई रेंजेस फ्रॉम 1 to n. ओके, एज वी विल बी प्लेसिंग आई इज इक्वल टू 1, तो कौन सा टर्म जनरेट होगा? m1 r1 स्क्वेयर. Okay, then I is equal to 2 will be generating m2 r2 square and I is equal to n will be generating mn rn square, और फिर फाइनली उन सबका सम. तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी बन गया. ठीक है. नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी दिस इज अ स्केलर और अ वेक्टर. अब इनर्शिया जो है हमारा, बिकॉज दैट इज डिपेंडिंग ऑन मास, है ना. क्या है मास? इनर्शियल मास, है ना. तो मास बेसिकली इज स्केलर क्वांटिटी, इनर्शिया अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट आल्सो इज अ स्केलर क्वांटिटी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या है? देखो, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास का यूनिट क्या है? केजी. ठीक. लेंथ, दैट इज आर्म ऑफ रोटेशन का लेंथ है ना, तो केजी मीटर स्क्वेयर. किलोग्राम मास के लिए आया किलोग्राम. इट्स ओके, फाइन. किलोग्राम एंड देन मीटर स्क्वेयर. दिस इज एसआई यूनिट. एंड सीजीएस सिस्टम में, फाइन, सीजीएस सिस्टम में द यूनिट्स आर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर. इट्स ओके. ठीक है. तो एसआई और सीजीएस में जो हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट्स हैं, दोज आर किलोग्राम मीटर स्क्वेयर एंड ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर. नाउ बॉडी के किस किस पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर, ओके, बॉडी के किस तरह के, मतलब किस किस वेरिएबल के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है. ओके, फाइन, लेट अस सी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, देखो ध्यान से किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है. एम आई आर आई स्क्वेयर हमने कहा. ठीक है, एम आई आर आई स्क्वेयर. एम आई इज द मास एंड आर आई इज द परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सी, एम आई आर आई स्क्वेयर उसी पे डिपेंड कर रहा है. तो देखो, बॉडी अगर थोड़ा इधर हो गया तो r1 r2 ये पोजीशन वेक्टर सारे चेंज हो जाएंगे, है ना. मतलब एक्सिस का जो डिस्टेंस है बॉडी से कितना दूर है, फाइन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, इफ द एक्सिस इज हियर तो r1 r2 rn ये सारे चेंज कर जाएंगे एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी विल चेंज. तो वेरी फर्स्ट थिंग on which the moment of inertia of the body depends on, that is position of the axis of rotation. The moment of inertia of a body depends on, very first thing is position of axis of rotation. ठीक है. Now the second thing is orientation of the axis of rotation. Fine, orientation mean
कि ये बॉडी जो है एक्सिस जो है ये बॉडी के रिस्पेक्ट में कैसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, क्योंकि जैसे भी ये एक्सिस का ओरिएंटेशन होगा, ओके, उसके हिसाब से R1 R2 R3 ये जितने भी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं सारे चेंज कर जाएंगे, ओके। तो अनदर थिंग ऑन विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन. So second thing on which moment of inertia depends, that is orientation of the axis of rotation. Okay. Next thing is shape of the body. Shape of the body. Now see, अगर ये बॉडी जैसे n पार्टिकल से बनी हुई है, अगर ये लॉन्ग सिलेंडर होता यहां से कुछ ऐसे, तो R1 R2 R3 ये सारे के सारे वेरिएट कर जाते कि नहीं? ओके फाइन. अगर शेप इसका यहां पे एक क्यूब होता तो R1 R2 सारे वेरिएट करते. नंबर ऑफ पार्टिकल्स की चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, मास ऑफ द बॉडी कंप्लीट बॉडी सेम है, लेकिन शेप चेंज हो गया. तो शेप चेंज होने से हमारे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं दे विल गेट डिफरेंट, एंड क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी विल बी डिफरेंट. तो शेप ऑफ द बॉडी. उसके बाद साइज ऑफ द बॉडी. अब सेम मास का बॉडी है, ठीक है ना, अंदर से हॉलो हो गया, ठीक, हॉलो हो गया तो साइज बिग हो जाएगा कि नहीं, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहे और मास सेम रहा, ठीक, तो साइज चेंज होने से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस जो होंगे बॉडी के वो चेंज कर जाएंगे. तो इस कारण से मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल ऑल्सो वेरिएट. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बॉडी. साइज ऑफ द बॉडी, फाइन. और उसके बाद देखो, उसके बाद द थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इनसाइड द बॉडी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इनसाइड द बॉडी, इसका क्या मतलब है? देखो, ये सपोज करो अपना बॉडी है, दिस इज द बॉडी. अब इसमें यहां पे ज्यादा पार्टिकल्स हो गए, मतलब डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स यहां पे ज्यादा हो गई और यहां पे थोड़ी हो गई, मास उतना ही है. लेकिन अदर सिचुएशन वही बॉडी है, लेकिन डेंसिटी ऑफ मास यहां पे इंक्रीज, यहां पे ज्यादा आ गया या यहां पे ज्यादा आ गया. तो जहां ज्यादा पार्टिकल्स आ गए उनके R1 R2 पोजीशन वेक्टर्स चेंज कर जाएंगे ना, सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस सारे चेंज कर जाएंगे, ओके. तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है. तो दीज ऑल आर दोज थिंग्स ऑन विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स. इट्स ओके. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज क्लियर. Now let's take another thing related to moment of inertia, that is radius of gyration. Radius of gyration. Radius of gyration. Now you must be thinking कि ये radius of gyration है क्या, है ना? देखो, जैसा कि वर्ड खुद कन्वे कर रहा है, radius of gyration, है ना, radius है मतलब some length is there, okay. रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस की बात कर रहा है, मतलब इट इज रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ द बॉडी, फाइन. तो टू फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग पहले डायग्राम से आपको बताते हैं कि व्हाट बेसिकली इज रेडियस ऑफ जायरेशन. कंसंट्रेट करो आराम से जरा. सपोज वी हैव अ रिजिड बॉडी. ये दोनों फोटो जो है एक ही बॉडी की है, ठीक है. अ रिजिड बॉडी मूविंग अराउंड जेड एक्सिस, मूविंग अराउंड जेड axis, same body moving around z axis, okay. Body is made up of masses m1 m2 m3, okay. Body is made up of n particles, each of mass m1 m2 m3 up till mn, okay. See, mass m1 situated at a perpendicular distance r1, okay. Mass m2 situated at a perpendicular distance r2, nth mass situated at perpendicular distance rn. It's okay, ठीक है. अब अगर हम आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने को कहें तो हाउ यू विल बी राइटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, ये जो रिजिड बॉडी है, यू विल बी राइटिंग दैट थिंग एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 square plus up till nth term, that is mn rn square. ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बेटा. यस, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. वी आर गेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ओके.
अब व्हाट आई विल बी डूइंग, ध्यान से जरा सुनना आप। सेकंड सिचुएशन में बॉडी वही है। आई एम नॉट कंसीडरिंग कि बॉडी इज मेड अप ऑफ n पार्टिकल्स। मैं अब n पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, अब मैं बॉडी के टोटल मास की बात कर रहा हूं। टोटल मास की बात अगर मैं करना चाहता हूं तो इट मींस आई एम टॉकिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास आई एम टॉकिंग ऑफ, एंड दिस m, ये जो m मैंने लिखा है, दिस m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस अप टिल mn, दैट इज टोटल मास ऑफ द बॉडी। क्लियर? अब हम इस बॉडी का कंसीडरिंग इट एज अ पॉइंट मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे अराउंड द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो मास परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा। ठीक है ना, करके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले आओगे। नाउ अब आपको करना क्या है, इस बॉडी का डिस्टेंस वेरिएट करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये जो वैल्यू है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, बॉडी को आगे पीछे करेंगे। ठीक है, मूव करेंगे ताकि ये वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है ना, इसको हम जे कहते हैं, चलो जे एच कहते हैं। ये आर्म जो जे एच है, ओके, इसका लेंथ चेंज करें। मीन वी आर प्लेसिंग द बॉडी सच दैट वैल्यू ऑफ आर इज चेंजिंग, और बार बार टर्न बाय टर्न उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ आर, कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, ओके, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जब हम इसको प्लेस कर रहे हैं बॉडी को, सपोज के डिस्टेंस के ऊपर हमने उसको रखा, और फिर हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें, दैट इज मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच वी आर कैलकुलेटिंग, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आ रहा है। ये कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया which we are calculating considering the body as n particle system, considering the body as n particle system। और यहां पे मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी कंसीडर कर लिया, और मैंने कंसीडर किया कि होल ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास। तो पूरा मास m ऑफ द बॉडी एक ऐसे डिस्टेंस के ऊपर रखा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी सिचुएशन में मिला, that moment of inertia is equal to moment of inertia which initially was calculated considering the body as n particle system। okay, ठीक है, तो ये जो k डिस्टेंस है, ये जो k परपेंडिकुलर आर्म का लेंथ है, ओके, डिस्टेंस at which the center of mass must be placed so as to have moment of inertia, so that the body is having the moment of inertia equal to this moment of inertia जो हमने बॉडी का n पार्टिकल सिस्टम कंसीडर करके कैलकुलेट किया था। तो दिस वैल्यू ऑफ k बेसिकली इज रेडियस ऑफ जायरेशन। तो k जो हमारा होगा वो रेडियस ऑफ जायरेशन कब होगा वो देख लो। ये हमने I1 कह दिया n पार्टिकल सिस्टम का। अब यहां पे हमने k डिस्टेंस के ऊपर रखा कंप्लीट बॉडी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द सेकंड सिचुएशन, ओके, बॉडी का मास m विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द मासेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज k स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, एंड दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 इज इक्वल टू I1 इफ I2 is equal to I1, okay, then K is radius of gyration. It's okay? तो K is radius of gyration in the situation. तो अब इसको डिफाइन कर दें। देखो, नाउ आराम से वीडियो पॉज करके डेफिनेशन रीड करो। वट एवर आई टोल्ड यू, द सेम थिंग आई हैव रिटन नाउ। Radius of gyration of a body about a given axis, okay, is that value of perpendicular distance from the axis of rotation, perpendicular distance from the axis of rotation, at which the center of mass of the body, okay, center of the mass of the body placed have
द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जब बॉडी को पॉइंट मास कंसीडर किया गया, जब बॉडी का सेंटर ऑफ मास कंसीडर किया गया, ओके, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर प्लेस किया गया, द बॉडी हैज द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेटेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम बॉडी इज कैलकुलेटेड with actual distribution of mass, मतलब considering the body as n particle system. तो this is all about definition आपको आना चाहिए, ओके, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया जाता है, डिफाइन रेडियस ऑफ जायरेशन एंड डिराइव रिलेशन फॉर इट, ओके. So this is definition. Now, how to derive relation for, how to find the value of radius of gyration? Let us see. Now, consider the rigid body. ठीक है, made of particles having masses m1, m2, m3 up till mn. Okay. लेकिन यहां पे एक assumption लगा रहा हूं to make the thing simple. Let all these masses, जो ये पार्टिकल्स के मास हैं, ओके, दे हैव इक्वल वैल्यू. मीन मैं लेट कर रहा हूं, ठीक है ना, लेट m1 is equal to m2 is equal to m3 up till mn, and all are equal to m. Mean all particles have the same mass. ठीक है, मतलब मास ऑफ बॉडी आई कैन राइट एज इज इक्वल टू, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n, मास ऑफ ईच पार्टिकल m, ओके, तो n इंटू m, ओके, दैट इज कैपिटल M कह देते हैं हम. कैपिटल M इज द मास ऑफ बॉडी विच इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास एंड दैट इज इक्वल टू n इंटू m. इट्स ओके, ठीक. तो सेम थिंग, body made of masses made of particles which have equal masses, situated at, those particles are situated at perpendicular distances r1, r2, r3 up till rn. It's okay, ठीक है. Now moment of inertia of the body in the situation, moment of inertia of the body क्या होगा, m r1 square, because all the particles they have same mass, m r2 square plus up till m rn square, r1 r2 r3 up till rn, these are the perpendicular distances. तो ये बॉडी का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कंसीडर करके जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया. इट्स ओके. नाउ कंसीडरिंग द बॉडी एज अ पॉइंट मास, ओके, तो मास ऑफ द बॉडी m which is equal to n into m, mean this much mass is concentrated at the center of mass. Now when this center of mass is placed at perpendicular distance k को हमने क्या कहा है, रेडियस ऑफ जायरेशन, तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, that moment of inertia will be equal to this moment of inertia. It's okay. So let's calculate the moment of inertia of the body, considering the body as point mass and placing that center of mass at a perpendicular distance which is equal to radius of gyration. Now considering the body as point mass, ठीक है, तो placing the body center of mass at perpendicular distance k, तो in the situation moment of inertia of the body I is equal to m, mass of body, multiplied by radius of gyration whole square. तो radius of gyration जैसा कि मैंने इसको कह दिया, तो this moment of inertia will be equal to moment of inertia with actual distribution. तो इसको नंबर 2 कर दो. Now moment of inertia in equation number 1 and moment of inertia in equation number 2 will be equal, okay, as हमने क्या कहा कि k is radius of gyration. तो from 1 and 2, from 1 and 2, m k square is equal to m r1 square plus m r2 square plus up till m rn square. It's okay.
ठीक है. Now this mass is equal to n number of particles and mass of each particle m. K square is equal to this mass common and we are getting r1 square plus r2 square plus up till rn square. It's okay. तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स परफॉर्म करते हैं. m कैंसिल हो गया. k का वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट नाउ. m इज कैंसल्ड. ओके. नाउ m कैंसिल हो चुका है. k का वैल्यू निकाल लेते हैं. k स्क्वेयर इज इक्वल टू r1 स्क्वेयर प्लस r2 स्क्वेयर प्लस अप टिल rn स्क्वेयर डिवाइड बाय ये n डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड k इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट बन जाएगा. रेडियस ऑफ जायरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट r1 स्क्वेयर प्लस r2 स्क्वेयर प्लस अप टिल rn स्क्वेयर डिवाइड बाय n. ये अपना रेडियस ऑफ जायरेशन आ गया. ठीक है. रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर अ रिजिड बॉडी. तो द क्वेश्चन इज नाउ कंप्लीट. डिफाइन radius of gyration and derive expression for it. Okay. So hope you have understood. Go through this particular thing. Fine. And if you find any kind of confusion, let me know about. Okay. So in the next lecture, we will be taking the relation of moment of inertia with different rotational quantities. Okay. Thank you. Have a nice time.